Hello, my dear friends. Today's verse is from Luke 11:28. हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आज का प्रतिज्ञा वचन लूका 11 उसका 28 से लिया गया है। Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। The Lord tells us two things in this verse. परमेश्वर इस वचन में दो बातें हमसे कह रहे हैं। The Lord tells us to hear the word of God and also to obey it. परमेश्वर कहते हैं हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है और उसको मानना भी है। So many times we are so hurried when we read the Bible. We just read it for the sake of reading and we don't even register what we read. कई बार बहुत जल्दबाजी में हम बाइबल को पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्या पढ़ रहे हैं क्योंकि हम नाम के वास्ते इसको पढ़ते हैं। Sometimes we read through the Bible and we think, Lord, this has nothing to do with my life. What are you telling me through these verses? कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन से इसको कुछ लेना देना नहीं है, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। This happened to me once and I will share that incident with you. एक बार मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, उस घटना का बयान मैं आपके साथ करना चाहूंगी। I was reading the chapter of Jeremiah one day. मैं एक दिन यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ रही थी And when I read through it, I said, Lord, I don't know what you are speaking to me through this, but I will remember what I read. जब मैं इसको पढ़ती चली गई, मैं परमेश्वर से कही, परमेश्वर मुझे पता नहीं आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको याद रखूंगी। And the same day in the night when during a worship session, the Lord spoke to me through the same verse that I read in the morning. और उसी दिन रात के समय उसी वचन के माध्यम से परमेश्वर ने मुझसे बात किया जो एक आराधना के समय था, जो वचन मैं सुबह पढ़ी थी। The Lord reminded me that verse and said, I am going to fulfill this promise in your life according to this verse. परमेश्वर वो वचन मुझे याद दिलाए और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे जीवन में इस वचन को पूरा करने वाला हूँ, इस वचन के अनुसार सब बात होने वाला And है। I was feeling so confident and so happy and had the peace of the Lord in me. मैं बहुत ही खुश हो गई, आत्मविश्वास से भर गई और परमेश्वर की शांति मेरे ऊपर उतर आया। I was worried about that project. I didn't know how it will go through, but the Lord reassured me with that promise verse which I read so long before. एक प्रोजेक्ट को लेकर मैं बहुत ही चिंतित थी कि मैं इसको कैसे पूरा करूंगी, लेकिन परमेश्वर मुझे सुनिश्चित किए एक वचन के माध्यम से जो मैं बहुत पहले पढ़ी थी। In the same way, whatever you read will never go into waste. ठीक उसी तरह जो भी आप पढ़ते हैं वो कभी बेकार नहीं होगी। You might think it's nothing, it has nothing to do with my life, but the Lord will speak to you through that verse sometime in your life. शायद आप सोच सकते हैं मेरे जीवन से इसको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन की किसी मोड़ में उसके माध्यम से आपसे बात करेंगे। And the Lord also tells you to obey each thing that you read. परमेश्वर आपसे ये भी कहते हैं जो भी बात आप पढ़ते हैं सारी बात को आपको मानना होगा। The Bible says in John 14:23. बाइबल यूहन्ना 14:23 में ऐसा कहती है, Anyone who loves me will obey my teaching. यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे वचन को मान लेगा। So let's take the decision today to read the word thoroughly and obey it every day. आइए आज एक निर्णय ले, हम पूरी तरह से परमेश्वर की वचन पढ़ेंगे और हर रोज उसका पालन भी करेंगे। Lord Jesus, I thank you for giving us this gift of Bible into each of our lives, Father. प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, हम सभी के जीवन में बाइबल का इस उपहार आप हम सबको दिए हैं। Lord, I thank you for speaking to us through each word in the Bible. पिता, बाइबल के हर एक वचन के माध्यम से आप हमसे बात कर रहे हैं, आपका I धन्यवाद। thank you for you have given us peace through when we read your word, Father. पिता, जब आपका वचन हम पढ़ते हैं उसके माध्यम से हमें शांति मिलता है, इसके लिए आपका धन्यवाद। Lord, we pray that we are going to read this Bible each and every day with full concentration and registering each word in our lives, Father. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम हर रोज पूरा ध्यान से बाइबल का हर एक वचन पढ़ेंगे और हमारे जीवन में हर एक वचन को हम कार्यान्वित करेंगे। Lord, help us to obey each and every teaching that you teach us. पिता, हर एक शिक्षा जो आप हमें सिखलाते हैं हमारी मदद करें कि हम उनको मान सकें। Even if it's a small thing, help us to obey it, Lord Jesus. शायद ये छोटी सी बात हो लेकिन हमारी मदद करे कि हम उनको मान सकें। Lord, we give our lives into your hands. You lead us and you guide us, Father. पिता, अपना जीवन आपके हाथ में हम सौंपते हैं, आप हमारी मार्गदर्शन करें, हमारी अगुवाई करें। In Jesus' name, Amen. यीशु के नाम से आमीन। So today, let's read the Bible from today and you will surely see a difference in your life. आइए आज से हम बाइबल पढ़ना शुरू करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बदलाव को आप देखेंगे।